कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। आगे के लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो आप लोग घर पे पढ़ाई करते हो क्या नहीं करते? घर पे पढ़ाई करना अच्छी तरह से, जो भी समझाया जाए ना वो घर पे ध्यान से पढ़ना और लिखना। तो चलो आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। अभी तो ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है, तो घर पे अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना। तो वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। એટલે કે છે કે એટલામાં થોડીક સ્ત્રીઓ આગળ આવી, તેટલામાં જે ત્રીજી સ્ત્રી હતી એનો જે છોકરો હતો એ સંસ્કૃતના શ્લોકના પાઠ બોલતો જોવા મળે છે। એટલે કે સંસ્કૃતના પાઠ જે બોલતો નીકળે છે। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो कि उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। એટલે કે છે કે એના અવાજમાં એવું લાગતું હતું કે જાણે એનો જે અવાજ હોય એમાં ભગવાન સરસ્વતી બિરાજમાન થયેલા હોય। એટલે કે એનો અવાજ બહુ સરસ હતો। तीसरी स्त्री के गदगद स्वर में कहा, यानी कि गदगद हो जाना यानी कि खुश हो जाना। तो वो बहुत खुश हो गई। तीजी स्त्री હતી એ खुश થઈને કહે છે કે देखो यह है मेरी गोद का हीरा। એટલે જે ત્રીજી સ્ત્રી હોય છે ને એમ કહે છે કે જુઓ કે આ મારો છોકરો જે છે એ મારા ખોળાનો હીરો છે। उसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। એટલે એને કોણ બૃહસ્પતિનો અવતાર નહીં કહે। परंतु उसका बेटा भी उसकी ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। એટલે કે એનો છોકરો પણ એની સામે જોયા વગર જતો રહે છે। अभी थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। હજી તો એનાથી થોડુંક જ હજી આગળ જાય છે તેટલામાં જે ચોથી સ્ત્રી હોય છે એનો છોકરો શું થાય છે ત્યાંથી નિકળે છે। वह दिखने में तो बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। એ બહુ જ સીધો સાધો એકદમ સાદો સિમ્પલ લાગતો હતો, સરળ સ્વભાવનો। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। એટલે એ કહે છે કે આ મારો જ દીકરો છે। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा आ पहुंचा। એટલે કે ચોથી સ્ત્રી હજી એના વિશે કંઈ કહેતી હતી તો એટલી વારમાં એનો છોકરો શું કરે છે એની પાસે આવે છે। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया। એની માનું જે માથા ઉપર પાણીના જે ઘડા ભરેલા હતા એ જોઈને તરત જ એની સામે આવીને ઊભો રહે છે। માં લાવો મેં તમારા ઘડા પહોંચા દઉં। એટલે એની માને કહે છે કે માં લાવ તમારો પાણી ભરેલો ઘડો છે ને એ હું ઘરે પહોંચાડી દઉં છું। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। એની માં ના પાડે છે તો પણ એને શું કર્યું, એની માના માથેથી જે પાણી ભરેલા ઘડા હતા એ શું કરે છે, લઈ લે છે અને પછી એના પોતાના માથા ઉપર મૂકી અને ઘરની તરફ જવા તૈયાર થઈ જાય છે। એટલે કે ઘર તરફ જવાનો જે રસ્તો છે ત્યાં જવા નીકળે છે રહ્યો। ત્યારબાદ तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती રહી। એટલે કે જે ત્રણેય સ્ત્રી હોય છે ને એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે આ જોઈને। અને એ ચોથી સ્ત્રીને એ ત્રણેય જે સ્ત્રીઓ હોય છે એ શું કરે છે, ચોથી સ્ત્રીનો જે છોકરો હોય છે એની સામે જોતી રહે છે। एक वृद्ध महिला जो इन औरतों से पीछे चलती हुई उसकी बातें सुन रही थी। एक वृद्ध स्त्री હતી એ આ જે સ્ત્રીઓ વાતો કરતી હતી એની પાછળ શું કરતી હતી, ચાલતી જતી હતી અને આ બધાની વાત સાંભળતી હતી। पास आकर बोली,
बोली देखती क्या सच्चा હીરા હે, એટલે કે છે કે આઈને દેખતી ક્યાં હો એટલે કે છે કે શું જોવો છો કે આ જ સાચો હીરો છે. કારણ કે ત્રણેય સ્ત્રીઓ પોતાના છોકરાના બહુ જ વખાણ કરતા હોય છે, બરાબર. તો ત્રણેય સ્ત્રીઓના જે છોકરાઓ હોય છે એ ત્રણેય જે સ્ત્રી હોય છે એના માથા ઉપર પાણીનો ભરેલો ઘડો જોવે છે. તો પણ એકેના ત્રણેયમાંથી એકે સ્ત્રીનો દીકરો શું કરે છે, એ ઘડો જોઈ અને માથેથી ઉતારવા આવતો નથી. બધા શું કરે છે, જોઈને જતા રહે છે. અને ચોથી સ્ત્રીનો જે છોકરો હોય છે એ એની માતાના માથા ઉપર જે પાણી ભરેલો ઘડો હોય છે એ જોવે છે. તરત જ શું કરે છે, એની માતાના માથા ઉપરથી પોતે લઈ અને ઘરે મૂકી આવે છે. એટલે એ જેટલી પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રી હોય છે ને એ કહે છે કે જોયું કે આને જ સાચો હીરો કહેવાય, કે પોતે પોતાના છોકરાના વખાણ કર્યા કરે એ સાચો હીરો કહેવાય નહીં, બરાબર. તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ, ઘરમાં આપણા માતા પિતાની નાના નાના કામમાં મદદ કરવી જોઈએ. तो उसके बाद क्या आता है विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ. आपको मालूम है ना, हम तो पाठ खत्म करते हैं तो उसके बाद में शब्दार्थ और मुहावरे भी लिखते हैं. आपको ऐसा होगा कि बृहस्पति क्या है, तो जो बृहस्पति હતા ને એ દેવોના ગુરુ હતા, બરાબર. तो उसके बाद मुहावरे है. आपके पाठ्य पुस्तक में से ही मुहावरे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बाहर के नहीं आते. और आपको तो मुहावरे तैयार करना आपको आगे भी काम में आएंगे. इधर उधर की बातें करना यानी कि गप्पे मारना, लाखों में एक होना यानी कि विशिष्ट देना, पछाड़ देना यानी कि हराना. उसके बाद में क्या आता है, बराबरी करना यानी कि मुकाबला करना, सच्चा हीरा એટલે કે अच्छा आदमी होना. यह हमें हमारा जो पाठ था इसमें आज हम हमारा ये पाठ पूरा करते हैं. उसके बाद आप क्या करोगे, घर पे शब्दार्थ लिखोगे और मुहावरे भी लिखोगे. अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो नोटबुक है उसमें यह लिख देना. और उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्वाध्याय. तो स्वाध्याय के जो प्रश्न है ना, चलो पेज नंबर 17 पर. चलो पहला प्रश्न है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की. आपको मालूम है कि ये सारी स्त्री ने अपने बेटों की प्रशंसा के बारे में क्या कहा, वो आपको कहाँ मिलेगा. आपका जो पेज नंबर है ना, कौन सा पेज नंबर है आपका 14 पेज नंबर पे देखो. सारे जो माँ थी उसमें कैसे उन्होंने अपने बेटे की प्रशंसा की थी आपको यहाँ से मिल जाएगा. पहली जो स्त्री थी उसने क्या कहा था कि उसका बेटा बहुत अच्छा गाता है, कोयल जैसा, और कोयल मैना भी चुप हो जाती है. दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा क्या कहा था, वो तो बहुत बहादुर है, आधुनिक युग का भीम है, कहा था ना ऐसे. तो हमको सारे प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे आपको. इसलिए मैं आपको बोलती हूँ हर एक लेक्चर में कि आपको जो भी पाठ पढ़ाए जाए ना, तो आप क्या करोगे, घर पे अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना, पाठ पढ़ना, गुजराती ट्रांसलेट करना, तो आपको पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे. तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की कैसे की, तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा के बारे में कहा, वो तो बहुत अच्छा गाता है, कोयल मैना भी चुप हो जाती है, उसके कंठ में तो कंठ कैसा है, मधुर है, कोयल की बोली जैसा है. यह वो कंठ बहुत मधुर है, अच्छा गाता है, और उसका गीत भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं. उसके बाद दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा था. दूसरे स्त्री ने अपने बेटी की तारीफ में यह कहा था कि वह बहुत शक्तिशाली बहादुर है, बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है. तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा था
तीसरी स्त्री ने यह कहा था कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का निवास है। चौथी स्त्री ने अपने के बेटे का परिचय क्या दिया था? वो तो सीधा साधा सरल प्रकृति का है, यह कहा था ना वह। हाँ, चलो उसके बाद में ये है ना, उचित कौन किसे कहता है, वो तो मालूम है ना आपको, वो तो लिख देना घर पे, वो तो आपको आ जाएगा एक बार पढ़ोगे तो। बस यही था आपका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय भी घर पे लिख देना हिंदी की नोटबुक में। उसके बाद में क्या आता है व्याकरण, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।